A very good morning to all of you, and welcome back to yet another Facebook Live. And uh, I hope you are at home, you are safe, making sure that by staying at home, we are not spreading this disease. And at the same time, we are helping to the society, to the nation as whole, to ensure that we are not spreading any of the uh, disease from our side. Okay, so uh, if you have joined here, if you are able to listen to me, just type hi or good morning in the comment box so that I can know that you're here and we are together and we are able to listen to each other, right? So please type good morning or hi in the chat box. So, and yes, good morning, Dr. Pratik, Dr. Ganesh, Dr. Wagmare, Sanjay. Good morning, everybody. And good to see you again back. Interestingly, this is the fifth Facebook Live I'm doing at, yes, fifth. Yeah, it is the fifth Facebook Live. Good morning, Dr. Sandeep Gaikwad. And I'm so happy that all these Facebook Lives, right from when we started, even before the lockdown, because it was the time when actually the dental lockdown started. And I'm so happy that, all these Facebook Lives have helped a lot of people to stay motivated, stay positive, to focus on how to use this time in the best possible way, to focus on what can you do and what you cannot do in this lockdown times. Then I received so many personal messages, so many messages on messengers and WhatsApp and few phone calls as well, that this really helped us to remain in the positive space, in the positive environment throughout this period of lockdown. And I'm really so happy to contribute for all of you in this particular tough time, because none of us ever thought that we'll be able to witness or we'll be able to have this kind of time in our life. If somebody would have told us not to go to our work for maybe 3 days, 5 days, and stay at home, the first thing that would have come out of our mouth was like, probably it's impossible, it just cannot happen, how can it is possible, or etc., something like that. And interestingly, all of a sudden, we all are doing it for almost a month now. And right from that first Facebook Live, somehow I'm really getting it accurate. That is just out of my logic and common sense. Whatever I have talked about the how the corona will progress in our country, how the lockdown will progress. And I don't know, it should not be called as prediction, because there is no prediction, it's just a logic and common sense. But the common sense and the logic is getting correct and getting proper. Okay, every time I'm guessing it right, you can say. Okay, and I still remember in the first Facebook Live, I said it's not going to stop at 31st March. Then I said it's not going to stop on 14th of April. It should be minimum till 30th of April. And then last time I said for those cities where we have the hotspot kind of areas like Mumbai, Pune, Delhi, okay, where there are many patients who are a lot of patients of corona. So this lockdown probably will get extended even beyond 3rd of May. And that is just my own thinking. So there is nobody should hold me accountable or responsible for this. Of course, I am responsible for what I said. Why it is important to make this guesses, okay, we should not call them predictions also, so that we can prepare ourselves mentally to be at home, and to use this time in the best possible way. Because one of the biggest disturbing factor for a lot of people was the sense of denial.
Okay, a lot of people are, even now I think, are still in the denial mode, where it is very difficult for them to digest that I'm not going to work on 21st of April, I'm not going to work on 4th of May or whatever. Okay, so we don't know what is happening around us, we don't know how things will pan out. See, the entire focus should always be on what is there in your hand, okay, and not what is beyond your control. So that is very important that you understand this, and let's see how it goes, and don't lose the hope, don't lose the heart. So friends, it has been 5 minutes we have started this Facebook live. I was actually waiting for a few more people to join, and those of you who have joined just now, a very good morning and a very happy Sunday morning to all of you. Just please type your good morning or hi in the chat box. I would be happy to welcome you all, on this very good and a very special edition of Facebook Live. Last time we talked about the 10 lessons we can learn from Ramayana, and we talked about all the non-conventional, or the orthodox or typical generic stuff, and we literally had uh, very powerful lessons, uh, specifically in a completely different way, which are normally not thought of or taught about. And this time we are going to talk about 10 powerful lessons, okay, about or from Mahabharata. And at the same time, yes, a lot of people are here. Good morning, everyone. Happy to see you again here. And as I was sharing that, today we are going to talk about 10 lessons we can really get from Mahabharata, and remember these 10 lessons for a lifetime, because these 10 lessons are going to teach us so many powerful messages, at the same time insights, and it will be extremely useful if you follow these lessons in your day-to-day life, or in the specific situations when you when that situation arises. So as we start with the 10 lessons, I want you people, if you think that I don't know if you have watched the Ramayana episode. If you did, great. If you shared, very good. If you think this will be useful to a few of your family members, relatives, or friends, I want you to start a watch party or tag them as well, so that you can spread this message to everybody. Hi Anand. Good morning. A lot of friends here. So good morning everyone. Happy to see you here. Also, a very nice once again. So as I was just quickly mentioning, yeah, Mandipji, Goa beach, yeah, because it's a vacation time, right, for all of us. So I just thought that instead of okay, just wearing some formal stuff, let's have some vacation mode, and that feels great that you're in the right spirit, you're in the right mode, and you can, as I said, you can tag people, you can invite them for this talk, or you can share this, powerful lessons from Mahabharata even after the Facebook Live is over. As I said that, okay, share it with at least 5 people around you. And I'll tell you what, why it is important to share good stuff, because we are living in one of the most uncertain times of our life. We are living in one of the toughest phase of life, where we all know what's going to happen 3 months from now, 6 months from now, a year from now. Okay, and it's very important that we help each other to remain positive, to remain in the zone of positivity, in the environment, in the context of positivity and the right mindset throughout this crisis. So that's why I'm taking all these efforts every Sunday and making it happen for all of you. And today I deliberately have this Goa beach, so that you also go back to your memories. I'm sure almost all of you have gone to Goa at least once in your life, and those of you who have not, make sure that you plan your vacations once the corona issue is gone. Okay, so let's start with the lessons from Mahabharata. So the 10 lessons which I'm going to share with you about Mahabharata are this. And let me tell you, we have, when we discuss about Ramayana, we took 10 situations,
And out of the 10 situations, I shared my view, my perception about those 10 situations from a completely different context. Okay. Instead of taking it in a very generic way like team building and negotiation and leadership and so on. And okay, so I shared something very different last Sunday, and today as well I'm going to share it with a completely different perspective. Yes, as Navdeep said, yes, समय भी निकल जाएगा. Yes, this too shall pass. These four, these four words are the only, eternal words on this planet. This too shall pass. Yes. Um, okay, Dr. Jayashree says if I want to share this with the family and friends, we can go in Hindi also. Okay, if you want, we can talk in Hindi as well. I don't mind. Okay, so I don't know. पूरा सेशन हिंदी में बात करें. I'll be fine with that. That's not a problem at all. And ओके एनीवे सो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी रामायण के बारे में. एंड यू नो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस रामायण और महाभारत में? सबसे ज्यादा बेसिक डिफरेंस क्या है? सो इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से रामायण और महाभारत में सबसे एक बुनियादी अगर कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि रामायण एक त्याग या सैक्रिफाइस वाला स्टोरी है. रामायण इज ऑल अबाउट सैक्रिफाइस. राम सैक्रिफाइसेस हिज kingdom and everything for his father. His father sacrifices his life for the promise given to his wife. Okay. Then Sita sacrifices her life for Rama. Lakshman sacrifices his life for Rama. Okay. And it's all about sacrifice. It's all about the whole of Lanka sacrifices everything for the sake of Ravana and everything. So Ramayana is basically a story of sacrifice. Ramayana एक त्याग की स्टोरी है और महाभारत एक संघर्ष की कहानी है. ओके, तो ये बहुत बड़ा बुनियादी फर्क रामायण और महाभारत में. सो रामायण में हमने 10 इंसिडेंसेस लिए थे. महाभारत में हम लोग 10 कैरेक्टर्स लेने वाले हैं. एंड लेट मी टेल यू, 9 कैरेक्टर्स लेंगे और एक इंसिडेंस, बिकॉज वो इंसिडेंस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस पर बात करें और हमें वो चीज पता हो. आई एम श्योर सबको सब कुछ पता होता है. ओके, आई टेल यू, जब मैं अगर आपको अभिमन्यु की बात करूं, द्रौपदी की बात करूं, दुर्योधन की बात करूं, सबको सब कुछ पता है. ओके, द थिंग इज हम उसे किस नजरिए से देखते हैं. हाउ यू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, और मे बी इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. एंड दैट इज व्हाट सेपरेट्स द एंटायर moral. That is what separates the entire message from the story. And okay, so Ramayana was all about sacrifice, and Mahabharata is all about struggle, sangharsh. Okay, so this is the basic difference. Now I'll start, and we'll take one by one character, and with those characters we will actually I'll give or share my message. राइट? तो सबसे पहले द्रौपदी. ओके, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी. सारा महाभारत आई एम श्योर आप लोगों में से लगभग सभी ने देखा होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. सारे महाभारत केवल एक सेंटेंस की वजह से हुआ था. एक वाक्य, एक सेंटेंस जिसकी वजह से सारा महाभारत हुआ, और वो द्रौपदी ने वो सेंटेंस कहा था दुर्योधन को, और वो सेंटेंस था अंधे का पुत्र अंधा. नाउ अंधे का पुत्र अंधा, द मोमेंट द्रौपदी सेड दिस, दुर्योधन को गुस्सा आ गया, और यू ऑल नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है. ओके, सो रिमेंबर, पूरे महाभारत की कहानी ये एक सेंटेंस की वजह से शुरू हुई थी. So, what is the biggest and the most powerful lesson to learn from Draupadi's that sentence is think before you speak. हम लोगों ने बात करने से पहले सोचना बहुत जरूरी होता है. अगर हम लोग बात करने से पहले नहीं सोचते हैं तो उसका अंजाम कितना भी बेकार, गहरा
और लॉन्ग टर्म हो सकता है. So think before you speak is a very powerful lesson you should understand from द्रौपदी. ओके, और ये हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में लागू होता है. हमारे घर पर भी, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी हम लोगों ने बात करने से पहले सोचना चाहिए. जो कहा जाता है ना कि तीर कमान से, ओके, बात जुबान से और प्राण शरीर से जाने के बाद कभी वापस नहीं आते. तो हमेशा याद रखना, एक गलत सेंटेंस अगर कहा गया तो आप आपके रिलेशंस लूज कर देते हो, आप आपकी क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हो, आप आपके दोस्त लूज कर देते हो, आप आपके रिलेशन तो रिश्तेदार लूज कर देते हो. एक गलत सेंटेंस आपकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है. और हमने हमारे आसपास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे. आई एम श्योर कि हम सभी ने ये सब देखा हुआ है. सो ऑलवेज रिमेंबर, थिंक बिफोर यू स्पीक इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके बिजनेस प्रोफेशन में भी अगर एक गलत सेंटेंस आपके मुंह से निकल जाए तो कई बार आप आपका कस्टमर या कई बार आप आपका पेशेंट खो बैठते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे, one of the very powerful lessons from Mahabharata is you must think before you speak. Otherwise, it can create the entire Mahabharata in your life. Whether in your relationship, whether in your finances, whether in your profession and business, whether in your personal life, whether in your social life. हम लोगों ने ये भी देखा है कि कई पॉलिटिशियंस के करियर खत्म हो गए थिंक बिफोर यू स्पीक को अमल में न लाने से. सो ये बहुत जरूरी है कि अगर द्रौपदी से अगर कुछ सीखना है, हर कैरेक्टर से बहुत सारी चीजें हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर द्रौपदी से हमें कुछ सीखना चाहिए तो वो ये सीखना चाहिए कि वी मस्ट थिंक बिफोर वी स्पीक. ओके, सो दैट इज द लेसन. आई होप यू लाइक द इनसाइट. इफ यू लाइक इट, जस्ट शेयर योर thoughts in the chat box so that I will come to know that you are with me. Okay, and I'll just move ahead at the same time. Right? Wonderful. So the second character and the lesson from that character. Okay, हिंदी दिल को छू जाती है. थैंक यू सो मच अनिल जी, हिंदी में ही बात करेंगे. सो दूसरा जो पात्र है महाभारत का, वो है अभिमन्यु का. ओके, और अभिमन्यु के पात्र से अगर हमने कोई एक सबसे बड़ी चीज सीखनी चाहिए जो हमारे संपूर्ण जीवन में हमें बहुत ज्यादा काम आती है और हमेशा आएगी, वो चीज है हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है. और आप सभी को पता है कि वो अधूरा ज्ञान क्या था. ओके, एज मीर से उस सेंटेंस ने आग में घी डालने का काम किया था. यस, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर द वॉर and the moment Draupadi said that sentence, it just sparked the entire episode, right? Anyway, so the second character Abhimanyu, और अभिमन्यु से अगर हमने सबसे बड़ी चीज अगर कोई सीखनी चाहिए तो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस. किसी भी क्षेत्र में अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. और ये चीज मैं स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो आज उपस्थित है उनमें अधिकतम डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र भी है जो डॉक्टर्स नहीं है. लेकिन एक डॉक्टर की हैसियत से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि हम सभी डॉक्टर्स इस चीज को, आप लोग जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर है, कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको उस पर्टिकुलर बीमारी, जिस चीज से वो बीमार है, उसका हाफ नॉलेज होता है, अधूरा ज्ञान होता है, या फिर गूगल पर कुछ अधूरी चीज सर्च करके आते हैं. ओके, जिन्हें हम गूगल पेशेंट भी कहते हैं मजाक में. ओके, और ये हाफ नॉलेज अगर वो डॉक्टर की बात पूरी तरह से नहीं सुनते हैं तो उनके लिए ज्यादा नुकसान ही साबित होता है. उसमें कुछ फायदा होने से उनके लिए ज्यादा नुकसान ही साबित होता है. सो हमेशा याद रखें, अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हुई और चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु केवल एक चीज की वजह से हुई और वो चीज थी अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज. सो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आपको अधूरा ज्ञान ना हो,
आप सभी के लिए, जो डॉक्टर्स नहीं भी है उनके लिए, एक और बहुत कॉमन नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, और आई एम श्योर कि आप सभी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये गलती आपने आपके जीवन में 100% कम से कम एक बार तो पक्का की है। और वो गलती आपके पैसे के बारे में या आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कुछ लोगों ने अधूरे नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, कुछ लोगों ने अधूरे नॉलेज के साथ बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदे, कुछ लोगों ने अधूरे नॉलेज के साथ रियल एस्टेट में कुछ पैसा डाला और फंस गए। राइट? अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या आप उनमें से कुछ है, तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस चैट बॉक्स में शेयर करें। हाफ नॉलेज ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। सो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको काम करना है, वो भले ही आपका खुद का क्षेत्र हो या कोई और क्षेत्र हो, याद रखें कि उसका पूरा ज्ञान या ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, वरना आप भी आपके क्षेत्र में, आप भी इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में जरूर अभिमन्यु बन जाओगे। तो महाभारत के इस पात्र अभिमन्यु से अगर कोई सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है तो वो ये है कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक चीज होती है। तो याद रखें दोस्तों, दूसरा पात्र जिसके बारे में मैंने बात किया, अभिमन्यु, तो अभिमन्यु से हमने ये सीखना चाहिए कि अधूरा ज्ञान कभी भी ना हो। अगर आप इस चीज से सहमत है, आपने इस टाइप का कोई एक्सपीरियंस आपके जीवन में लिया है या देखा है किसी को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए, किसी का करियर, किसी का प्रैक्टिस बिखरते हुए, किसी का इन्वेस्टमेंट, किसी का बैंकरप्सी होते हुए, तो जरूर आपके व्यूज यहां पर शेयर कीजिए। सो हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये चीज हम अभिमन्यु से सीखते हैं। ओके, तीसरी चीज जो हम लोग सीखते हैं मेरे हिसाब से, वो है धृतराष्ट्र से। सो धृतराष्ट्र से हमने क्या सीखना चाहिए? और मेरे अपने परसेप्शन, मेरे अपने ओपिनियन के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, हर कैरेक्टर से बहुत सारी सीखें हैं, पर धृतराष्ट्र से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई गलती कर रहा हो, विशेषकर आपके बच्चे अगर गलती कर रहे हो, गलत राह पर जा रहे हो, तो आपने उनको जितना जल्दी हो सके तुरंत रोकना चाहिए। बिकॉज मिस्टेक इज मिस्टेक, गलती गलती है, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती किसी से भी हो सकती है, आपके बच्चों से भी हो सकती है, लेकिन उन्हें जितना जल्दी और उसी क्षण अगर आप रोको और समझाओ, सो आपके पारिवारिक जीवन में भी, आपके फैमिली में एक बहुत बड़ा महाभारत होने से आप रोक सकते हो। और यह चीज न केवल आपके बच्चों के लिए लागू होती है, आपके वर्क प्लेस पर आपके स्टाफ, आपके साथ काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज, आपके सहकारी, आपके पार्टनर्स, आपके एसोसिएट्स, हर एक के ऊपर यह चीज लागू होती है। सो हमेशा याद रखें, मिस्टेक इज अ मिस्टेक। सी, इट इज सेड वी हैव ऑल द राइट टू गो रॉन्ग इन लाइफ। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी गलती कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। गलत यह है कि गलती करने के बाद भी हमें वो ध्यान में ना है, कोई हमें समझाए नहीं, और अगर आपके ध्यान में किसी की गलती आती है तो ये आपका काम है कि आप उसे जल्दी से जल्दी वार्निंग दे, उसे समझाएं और इस गलती से परावृत्त करें। धृतराष्ट्र को पूरी तरह से समझ में आ रहा था कि उनके पुत्र क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन पुत्र मोह के खातिर, उस राजपाट के खातिर, उन्होंने अपने बच्चों की गलतियों को समय पर नहीं रोका और महाभारत हो गया। मैं चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हर मां बाप अपने बच्चों के लिए जीवन में हमेशा ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। आप में से जो यहां पर मम्मी पापा है, आई एम श्योर कि आप मुझसे सहमत होंगे। एक बार जैसे ही आपके बच्चे हो जाते हैं, आपका पूरा जीवन आपके बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और आप चाहते हो कि आप आपके बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे, अच्छे से अच्छे खिलौने दे, अच्छे से अच्छे सुख सुविधाएं दे, अच्छे से अच्छा घर दे, सब कुछ अच्छे से अच्छा वेकेशन दे, छुट्टियां दे। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की हमेशा कोशिश करता है। तो ये अच्छा करने के चक्कर में अगर आपके बच्चे कहीं पर गलत करते हैं, गलती करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें समय पर वहीं पर टोके और रोके, न कि उस गलती को इतना बढ़ने दे कि उसका रामायण महाभारत हो जाए।
तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay, so mistakes are mistakes. That's fine. We have all the right to go wrong in life. The thing is, how fast we come back is important. तो मैं चाहता हूं कि आपके परिवार में, आपके बच्चे, आपका कोई भी फैमिली मेंबर, आपका कोई भी एम्प्लॉय, स्टाफ, एसोसिएट, पार्टनर्स, कभी भी अगर कोई गलती करता है तो उसे आप अच्छे ढंग से समझाएं, ताकि बहुत बड़ा महाभारत आपके परिवार में, आपके वर्क प्लेस में, आपके इर्द गिर्द होने से रुक जाए. ओंकार सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, बिफोर डूइंग एनीथिंग होमवर्क इज इंपॉर्टेंट. यस, ये लागू होती है अभिमन्यु की जो हम लोग बात कर रहे थे. होमवर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो द्रौपदी से हम सीखे कि थिंक बिफोर यू स्पीक. बात करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए, राइट? अभिमन्यु से सीखे कि प्रॉपर होमवर्क, पूरा ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है. धृतराष्ट्र से सीखे कि गलतियों को कभी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उन्हें समय पर ही रोककर खत्म कर देना चाहिए. ओके, चौथा पात्र, और वो है शकुनी. ओके, शकुनी मामा से, आप सबको पता है शकुनी मामा का रोल महाभारत में क्या है. और मेरे हिसाब से शकुनी मामा से अगर हमने कोई सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए तो पावर ऑफ गुड और बैड एडवाइस, अच्छे और बुरे सलाह के बीच का अंतर. कौरवों के लिए शकुनी मामा न केवल मामा थे, बल्कि उनके पूरी तरह से सलाहकार भी थे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके एडवाइजर्स हमेशा बहुत अच्छे रहे. आपके एडवाइजर्स हमेशा बहुत अच्छे रहे. मैं हमेशा अपने लाइफ एक्सेल कोर्स में ये चीज हमेशा लेता हूं. पिछली बार रामायण में बात कर रहे हमने मंत्रा की बात की थी. ओके, पावर ऑफ एसोसिएशंस. और सिमिलरली जब शकुनी मामा की बात आती है तो पावर ऑफ एडवाइजर्स. आपके सलाहकार हमेशा अच्छे होने चाहिए, वरना न केवल वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, बल्कि आपको भी बर्बाद कर सकते हैं. और दोस्तों, मुझे इस बात की गारंटी है, मैं श्योर हूं इस बात पे, कि आप सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी से अलग अलग विषयों पर सलाह लिए, और जहां पर आपको अच्छे और सही सलाहकार मिले हैं, वहां पर आपका जरूर फायदा हुआ है, जरूर लाभ हुआ है. और जहां पर आपको अच्छे सलाहकार नहीं मिले हैं, वहां पर आपका जरूर नुकसान हुआ. कुछ लोगों को गलत एडवाइजर स्टॉक मार्केट में मिले, कुछ लोगों को रियल एस्टेट में मिले, कुछ लोगों को रिलेशनशिप में मिले, और सब महाभारत हो गया. और कुछ लोगों को अच्छे समय पर अच्छी सलाह मिल गई और आपका जीवन बदल गया. राइट? सो शकुनी मामा से अगर हमें कुछ सीखना चाहिए कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एडवाइजर्स. पावर ऑफ गुड एडवाइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपके एडवाइजर, आपके मार्गदर्शक या उपदेशक बहुत ही अच्छे होने जरूरी होता है. ओके, डॉक्टर शिवदास, आपने मुझे संत बना दिया, साधु बना दिया, कोई बात नहीं. ओके, सो खुशी है कि कम से कम ये सेशन आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा. ओके, सो पांचवा पात्र जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और वो है एकलव्य का पात्र. सो आई एम श्योर आप में से जिन लोगों ने एकलव्य और मतलब महाभारत देखी है, उसमें एकलव्य का रोल देखा है. एकलव्य वो एक ऐसा पात्र है जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शिष्य बनाने से ना कर दिया था. क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ये चीज अच्छी तरह जानते थे, भली भांति जानते थे कि एकलव्य अर्जुन के बराबरी का धनुर्धर बन सकता है. और गुरु द्रोण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन की बराबरी वाला, उनको टक्कर देने वाला कोई धनुर्धारी इस दुनिया में रहे. सो जब एकलव्य ने गुरु द्रोण से अब शिष्य बनने के लिए उनको बोला या उनसे मांगा कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ, तो गुरु द्रोण ने ना बोल दिया. ना, उसके बाद क्या हुआ, और ये बहुत ही पावरफुल चीज है दोस्तों. उसके बाद एकलव्य ने ये नहीं कहा
ये नहीं चिल्लाए या इस बात पे नहीं रोए कि यार दुनिया के सबसे श्रेष्ठ गुरु ने मुझे मना कर दिया है, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे सीखूंगा, अगर मेरे पास गुरु द्रोण जैसा गुरु होता तो मैं इस प्रकार का धनुर्धर बनता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ओके, व्हाट एकलव्य डिड, एकलव्य ने क्या किया? एकलव्य ने गुरु द्रोण को ही अपने सामने अपना गुरु बनाकर रखा और वो बिल्कुल अर्जुन के बराबर के धनुर्धर बन गए। दोस्तों, जो सबसे बड़ी सीख मेरे नजरों में एकलव्य से हमें मिलती है कि अगर आप आपके काम के प्रति, अगर आप आपके उद्देश्य के प्रति बिल्कुल पैशनेट हो, अगर आपके अंदर कुछ करने की, कुछ पाने की अगर वो एक बहुत बड़ी आग है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल if you are passionate about something. And this is very, very, very important thing. This is very important. इंसान में रिसोर्सेस ना हो तो चलता है, हमारे पास गुरु द्रोण जैसा गुरु अगर नहीं है तो भी चलता है, हमारे पास कोई मार्गदर्शन नहीं है तो भी चलता है, लेकिन अगर एक चीज हमारे पास है तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और वो चीज होती है, जो कुछ आपका ध्येय है, जो कुछ आपको पाना है, उसके प्रति वो एक आग, वो एक भूख आप में होनी चाहिए। दैट हंगर, दैट फायर, दैट बर्निंग डिजायर, दैट पैशन शुड बी देयर। और अगर वो आप में है तो यू बिकम अनस्टॉपेबल इन योर लाइफ। तो अगर एकलव्य से कोई एक चीज हमने सीखनी चाहिए तो वो ये सीखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सचमुच बहुत पावरफुल है और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव आपने देखा है या महसूस किया या आपने इसे अमल में लाया है, तो मैं चाहता हूं कि आप आपके कमेंट्स यहां पर शेयर कर सकते हो। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग एकलव्य से सीख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक 4-5 चीजें हम लोगों ने अभी तक कवर की है। अगली चीज जो मैं आप लोगों के साथ या आपके समक्ष, आपके सामने रखना चाहता हूं, वो एक कोई महाभारत का पात्र नहीं बल्कि एक घटना है, एक इंसिडेंस है। और ये मैंने बहुत स्पेसिफिकली आपसे स्टार्टिंग में भी कहा कि रामायण में मैंने सारे इंसिडेंसेस लिए थे, सारी घटनाएं ली थी, महाभारत में सारे पात्र लिए, सारे कैरेक्टर्स लिए, एक्सेप्ट वन इंसिडेंस। केवल एक घटना जिसका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं वो ये है, और वो घटना है कि जो गेम कौरव और पांडवों के बीच, ओके, जो चौरस का गेम वहां पर खेला गया था, ओके, जो जुआ कौरव और पांडवों ने खेला था, उस जुए की, उस गैम्बलिंग की घटना की मैं बात करता हूं। हम सभी को पता है कि गैम्बलिंग गलत है, राइट? लेकिन हम सब उसके बावजूद किसी न किसी तरीके के गैम्बलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे विचार से सहमत होंगे, राइट? मैंने पिछले संडे को भी बोला था कि आप में से कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ना करें। मैंने यहां तक बोला था कि नेवर एवर 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 ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, ओके? लेकिन इसके बावजूद भी लोग जरूर ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसकी मुझे गारंटी है। कुछ लोगों को पत्ते खेलने का शौक होता है, कुछ लोगों को जुआ खेलने का शौक होता है, कुछ लोगों को लॉटरी निकालने का शौक होता है, कुछ लोगों को गोवा के कैसीनो में जाने का शौक होता है, कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का शौक होता है, कुछ लोगों को ऐसे जगह पैसा लगाने का शौक होता है कि जहां पर 6 महीने साल भर में पैसा डबल हो जाए, राइट? सो ये क्यों होता है जबकि हम सबको पता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है? इसके बावजूद ये क्यों होता है? मैंने पिछली बार बोला था कि नेवर एवर ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, लेकिन आज मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, शायद आपको शॉक लगेगा कि मैं आपको अब ये नहीं बोल रहा हूं कि गैम्बलिंग ना करें, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी ऑल हैव अ गैम्बलिंग एलिमेंट इनसाइड अस। एक बतौर इंसान हम सब में गैम्बलिंग का एक कीड़ा होता है,
और हम सब लोग किसी ना किसी तरीके से इस कीड़े को हमेशा आजमाते रहते हैं। आज मैं एक बहुत पावरफुल चीज आपको बताता हूं कि गैम्बलिंग ना करें, ये नहीं बताऊंगा आज मैं, बहुत अजीब सलाह लगेगी। आज मैं आपको ये बोलूंगा कि क्योंकि वो जुआ खेलने का किसी भी तरीके का वो जो एक अपने अंदर एक अपना एक गुणधर्म होता है, एक अपना वो नेचर होता है, एक अपने बिहेवियर का एक हिस्सा होता है। अगर हम लोग उसे, अगर मैं कितनी भी बार बोलूं कि किसी भी प्रकार का जुआ ना खेले, गैम्बलिंग ना करे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग ना करे, लॉटरी ना खरीदे, द प्रॉब्लम इज यहां पर आप लोग नहीं रुकने वाले, ये मुझे पता है। एंड इंग्लिश में एक कहावत है, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। आप इस चीज को जितना बोलोगे ये ना करें, उतना ज्यादा आप वो चीज करो। किसी चीज को अगर आप रेजिस्ट करते हो तो वो उतना आपकी तरफ आती है। सो गैम्बलिंग न करे, ऐसा बोलने से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह देता हूं कि दोस्तों, हम सबके अंदर वो जो एक गैम्बलिंग एलिमेंट है, जो गैम्बलिंग का कीड़ा है, उसे आजमाएं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दूंगा, हर साल हर साल या एक बार, दो बार, जितनी भी बार आप ये सब करना चाहते हो या करने की कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में कहीं एक इच्छा रखते हो, एक विशिष्ट अमाउंट, एक थोड़ा सा पैसा उस चीज के लिए निकाल के बाजू में रखें और ये मन बना ले कि अगर ये पूरा पैसा खत्म हो जाए तो मुझे कोई फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ेगा। केवल उतना ही पैसा निकाले जो अगर पूरा खत्म भी हो जाए, उसका पूरा नुकसान भी हो जाए, वो पैसा पूरा पानी में भी चले जाए, तो भी आपको बहुत बड़ा आर्थिक संकट आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। और उतने पैसे आपको जिस चीज में आजमाना है उतना आजमा ले। अगर आप जीतते हो तो उसके बाद कि भाई अगर मैं जीत रहा हूं तो ज्यादा पैसा डालूं, ये बहुत गलत है। अगर आप जीतते हो तो आपने जितना पैसा लगाया था और साथ ही में आप जितना पैसा जीते हो, ये दोनों को आप डाल सकते हो, लेकिन याद रहे उसके अलावा आपके जेब से एक भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं डालना चाहिए। और अगर आप ये दोनों पैसे अल्टीमेटली हार गए तो बात खत्म। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग द गैम्बलिंग, प्ले द गेम एंड फिनिश इट ऑफ। ये मेरी आपको सलाह है उस गैम्बलिंग से। सब कुछ दांव पे नहीं लगाए जैसे पांडवों ने किया था, केवल वो पैसा दांव पे लगाए जो अगर चला भी गया तो आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने आप को इस चीज का वादा करें कि वो पैसा जाने के बाद आप उसको रिकवर करने के लिए नया पैसा नहीं लगाओगे। हमेशा याद रखें, गैम्बलिंग के बारे में एक बहुत पावरफुल कहावत है, अ गैम्बलर ऑलवेज थिंक दैट ही विल विन टिल ही लूज हिज लास्ट मनी। गैम्बलिंग करते वक्त हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगला गेम मैं पक्का जीतूंगा, और ये भावना तब तक होती है, ये आशावाद तब तक होता है जब तक आप आपका आखिरी पैसा नहीं गवा देते। तो ये गलती कभी नहीं करना। एक फिक्स अमाउंट निकाले जो अगर खत्म भी हो जाए तो आपको कोई आर्थिक संकट ना आए, और वो पैसा जाने के बाद आप उस चीज को दोबारा कभी नहीं करोगे। हमेशा याद रखें, अगर आपने वो चीज दोबारा कर ली तो आप वो चीज बार बार करोगे। जो एक बार होता है वो जीवन में दूसरी बार कभी नहीं होता, और जो दो बार होता है वो बार बार होता है। ऐसी एक कहावत है, वट एवर हैपन्स वंस नेवर हैपन्स ट्वाइस, वट एवर हैपन्स ट्वाइस हैपन्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप आपकी गैम्बलिंग की मंशा, गैम्बलिंग की इच्छा एक बार पूरी करें और खत्म करें। ओके, डॉक्टर श्रीधर सेज ट्रेडिंग इज गुड विद प्रॉपर नॉलेज। द प्रॉब्लम इज whatever knowledge we have, we think that is proper. Okay, please try to get my point. So as Dr. Mir says, stocks are gambling only if you know knowledge. Again, this is right. I'll tell you what, even gambling is not gambling. The problem is we think we have the entire knowledge, and which times almost always is not correct. Okay, so Dr. Arushi gave the example of alchemist
book. Yes, very nice, and thank you Dr. Arushi for this. Okay, आप में से अगर किसने अल्केमिस्ट बुक नहीं पढ़ी है पाउलो कोएल्हो की तो जरूर पढ़े, बहुत खूबसूरत किताब है. ओके, सो ये था गैम्बलिंग के बारे में. अगली चीज है कर्ण. जब भी कर्ण की बात आती है तो हम कभी भी कर्ण नहीं बोलते, हम बोलते हैं दानशूर कर्ण, दानवीर कर्ण. यस, अगर कर्ण से कोई एक चीज हमें सीखनी है तो वो चीज होती है पावर ऑफ गिविंग, चैरिटी. आपसे जितना संभव हो आप देना शुरू करें. और ये चीज मैं बहुत बहुत फोर्सफुली आपसे कहना चाहता हूं कि चैरिटी करना शुरू करें. मुझे याद है एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने सुनी थी. एक अमेरिका में बहुत अमीर व्यक्ति थे और एक दिन वो ऐसे ही लोगों को बहुत सारा दान धर्म कर रहे थे. वहां पर एक बच्ची थी 10-15 साल की और वो बच्ची ये सब देख रही थी. एंड शी वाज अमेज्ड कि ओके, कि इतना अच्छे से कोई दान धर्म, इतना ज्यादा दान शुरू कौन है, कैसे है, और वो किस तरीके से दान धर्म कर रहे हैं. सब कुछ होने के बाद वो बच्ची उस अमीर आदमी के पास आती है और बोलती है कि जब मेरे पास आपके जैसा घर, बड़ा बंगला, बड़ी कार, बड़ा बिजनेस होगा तो मैं भी बहुत दानशूर बनूंगी और बहुत सारा दान करूंगी. तो उस अमीर आदमी वो मुस्कुराते हुए ये कहता है कि बेटा ये उल्टा होता है, जब आप देना शुरू करोगे तो आप पाना शुरू करोगे. अगर आपको एक आम खाना है तो आप बाजार से खरीद सकते हो. अगर आपको 1000 आम चाहिए तो सबसे पहले आपको आपका एक आम का पेड़ लगाना होता है. और ये निसर्ग का नियम है. ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू गिव फर्स्ट बिफोर यू गेट इट. एक आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं. अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे लोग आपके पास देख के मुस्कुराएं, आप रास्ते से चल रहे हो, क्या लोग आपको देख के मुस्कुराएंगे? लेकिन अगर आपने मुस्कुराने की शुरुआत की और जैसे ही आपने किसी को पहला स्माइल दिया तो सामने वाला भी आपको स्माइल देगा. आप दूसरे वाले को स्माइल दो, वो भी आपको स्माइल देगा. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. द मोर यू गिव, द मोर यू रिसीव. सो इफ यू वॉन्ट मोर, स्टार्ट गिविंग मोर. और ये चीज पैसे को भी लागू होती है, ये चीज ज्ञान को भी लागू होती है. जितना आप ज्यादा से ज्यादा दो उतना आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा. दिक्कत यह है लोग इसलिए देते नहीं क्योंकि वो चाहते कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा होगा तब मैं कुछ दूं. और निसर्ग का नियम हमेशा उल्टा होता है. जैसे ही आप देना शुरू करते हो आपके पास बहुत सारा आना शुरू होता है. दोस्तों, आप कितना भी पैसा आपके पास हो, कितना भी समय आपके पास हो, याद रखें कि उसमें से थोड़ा पैसा, आप इस चीज को एक गांठ बांध ले कि हर साल जो भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा, जो भी आप काम धंधा जो भी कुछ करते हो, कितना भी छोटा अमाउंट हो, 1% हो, 2% हो, 5% हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो, वो परसेंटेज आप हर साल चैरिटी में जरूर दोगे. कर्ण को तो उसके कवच कुंडल मांग लिए गए थे और कर्ण को पता था कि इंद्र ने कवच कुंडल मांगे भी क्यों है. कर्ण को पता था कि कवच कुंडल जाने के बाद, मतलब इट्स लाइक एक क्रिकेटर से, एक बैट्समैन से उसका हेलमेट मांग लिया गया. कर्ण को पता था कि कवच कुंडल देने का रिस्क क्या है, लेकिन फिर भी कर्ण ने कवच कुंडल दे दिया. भले ही महाभारत के युद्ध में कर्ण का पराजय हुआ, उनकी मौत हुई, लेकिन आज भी लोग कर्ण को हमेशा दानशूर के नाम से जानते हैं. सो पावर ऑफ गिविंग, पावर ऑफ चैरिटी is something which you must learn, and not only learn, practice. Start doing it. दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल आज से, अभी से कुछ ना कुछ देना शुरू करें.
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, पीएम केयर्स, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है आपके आपके राज्य में, क्योंकि बहुत अलग अलग राज्यों से आप लोग मुझे यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि आप अभी इस क्षण अपने आप से एक प्रॉमिस करें कि जैसे ये फेसबुक लाइव खत्म होगा, आज ही के दिन आप कुछ ना कुछ डोनेट करोगे। वो कितना भी छोटा अमाउंट क्यों ना हो, आप वो अमाउंट आज डोनेट करोगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से ये चीज प्रॉमिस करें अभी इसी वक्त, वो अमाउंट प्रॉमिस करें। और ये भी चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप आज ये काम नहीं करोगे तो आप कल ये नहीं करने वाले। बहुत सारे लोग मैंने देखे, मैं बहुत अलग अलग प्रकार के पार्टिसिपेंट्स अपने कोर्सेस में देखता हूं। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, एक्शन नहीं लेते। और कुछ लोग साल भर एक सेंटेंस भी नहीं बोलते। मैंने ऐसे भी पार्टिसिपेंट्स देखे, साल भर एक सेंटेंस भी नहीं बोलेंगे, लेकिन एक्शंस में वो कई लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाए। अपने आप को 10 प्रोमिस करने से मैं कहता हूं कि आज आप एक्शन लेना शुरू करें। इससे बढ़िया एक्शन कोई नहीं हो सकता कि आज आप कुछ ना कुछ डोनेशन दें। जो भी आप 100 रुपए दीजिए, लेकिन आज कुछ ना कुछ डोनेशन दें। क्योंकि अगर एक्शन में कोई पहला स्टेप हो, और अगर वो पावर ऑफ गिविंग हो या चैरिटी हो, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। जैसे राजेश भाई भी बोल रहे हैं, थोड़ा देने से बहुत बहुत ज्यादा वापस मिलता है। जी हाँ, मैंने राजेश भाई को भी बहुत कुछ देते हुए देखा है, और बहुत कुछ उन्हें पाते हुए भी देखा है। मैं चाहता हूं कि जैसे डॉक्टर करुण ने यहां पर लिखा कि आई प्रॉमिस टू डोनेट। यस, आप में से जो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं वो यहां पर टाइप करके लिखें कि आई प्रॉमिस टू डोनेट। डॉक्टर सोनाली गायकवाड़ सेज ऑलरेडी गिवन 1 month सैलरी फॉर कोरोना क्राइसिस। हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ। 1 महीने का सैलरी देना ये बिल्कुल आसान काम नहीं होता, जबकि हम खुद भी आज 0 पैसे कमा रहे हैं। हम तो ये भी बोलेंगे भाई मैं ही नहीं कमा रहा हूं तो मैं क्यों दूं, लेकिन नहीं, हम कम से कम इतने फॉर्चुनेट जरूर है कि हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर लिखें आई प्रॉमिस टू डोनेट टुडे, और प्लीज डोनेट करोगे आज, और करोगे ही, एक्शन लोगे तो ही लिखे। मुझे खुश करने के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, सो ये चीज करंट से आज हम सब सीखें और इसकी शुरुआत करें। नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ लिटिल, बट प्लीज डोनेट। एंड एज अजय गुप्ता वेरी नाइसली सेज, का डोनेशन उनके सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स है, ये ना करें। भगवत गीता में एक दान के ऊपर बहुत प्यारा श्लोक है। अंत में श्री कृष्ण कहते, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक स्मृतम। जो दान सही व्यक्ति को सही जरूरत के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि जिसकी चर्चा कहीं ना हो, जिसके बारे में किसी को पता ना चले, वो ही सात्विक या सर्वश्रेष्ठ दान होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग, बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ डोनेट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि इसकी कोई पब्लिसिटी ना हो, कोई पब्लिसिटी ना हो, कोई जरूरत नहीं हमें पब्लिसिटी करने की। वी आर डूइंग इट विथ अ वेरी गुड इंटेंशन, बहुत अच्छी भावना के साथ उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो हमसे लेस फॉर्चुनेट है। जरूर करें। और इतने सारे लोगों ने मेरी इस बात को मानकर इतना अच्छा यहां पर जो प्रॉमिस किया है, वेरी सिंसियरली आई वांट टू थैंक यू on behalf of this nation here, on behalf of our prime minister, on behalf of our government, on behalf of our chief minister, whatever. Okay, because it is important. It is important that we must take the right step at the right time. Action is more important and powerful than words. बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों से एक स्टेप लेने वाला व्यक्ति कभी भी बेटर होता है। Okay, thank you so much for your feedback here. Right, the next thing which I want to talk about is Duryodhan. Okay, so
दुर्योधन से हम लोग क्या सीखना चाहिए? बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बहुत इंसिडेंस मुझे बड़ा याद आता है कि युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण दुर्योधन को बोलते हैं कि जो मांगना है मांग ले, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी पूरी सेना है, जिसे नारायणी सेना कहा गया है, जो कि बहुत बड़ा मिलिट्री फोर्स है। और उस वक्त, okay, just a moment, Dr. Prodiswar says that already donated to 52 families below poverty line with their ration. Very nice, doctor, and thank you so much. So happy, and trust me, you will get this back in multifolds. Multifolds. Great, we appreciate you for this. Dr. Deepali Chauhan also says already donated to PM Fund. Awesome. Thank you so much for that. Right? So yes, we were on Duryodhan. Right? So एक तरफ नारायणी सेना है, एक तरफ श्री कृष्ण है, एंड कृष्ण सेज जो लेना है ले ले इस वॉर में, और दुर्योधन चूज करता है कृष्ण की सेना इंस्टेड ऑफ चूजिंग द कृष्ण। और क्योंकि कृष्ण ने बोला था कि इस महाभारत के युद्ध में मैं केवल एक सारथी का रोल अदा करने वाला हूं, रथ चलाने वाला सारथी, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सो दुर्योधन सोचता है कि अगर एक शस्त्र नहीं उठाने वाला है तो ये क्या काम का है, इससे तो मैं सेना ले लूं जो कि पांडवों की पूरी सेना को खत्म करने में काम आएगा। ओके, और ये एक बहुत बड़ी गलती है, और ऐसी बहुत सारी गलतियां दोस्तों हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं। हमें अच्छे बुरे की, हमें क्या ताकतवर है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो व्हेन इट कम्स टू चूजिंग बिटवीन वन, ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस, हमेशा क्वालिटी को चूज करें क्वांटिटी के ऊपर। आप लोग अपने अपने बिजनेस प्रोफेशन में काम करते हो, सो मेरे पास 50-100 पेशेंट्स आ जाए या मेरे पास 100 कस्टमर्स आ जाए, ऐसा सोचने से मेरे पास ऐसे अच्छे कस्टमर आए जो सचमुच चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, और जो भी मैं लिए करूं वो सचमुच एकदम ही हाई क्वालिटी होना चाहिए। ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दुर्योधन ने क्वांटिटी को चूज किया और अर्जुन ने या युधिष्ठिर ने क्वालिटी को चूज किया, और नतीजा आप सबके सामने है। जब भी जीवन में दो ऑप्शंस हो और उसमें से एक चूज करने का समय आए, तो हमेशा याद रखें कि सही ढंग से उसको एनालाइज करके, सही ढंग से उसके बारे में सोच के, उसकी जांच पड़ताल करके सही चीज चुने। दिक्कत हमेशा ये होती है कि जब भी इंसान के सामने दो ऑप्शंस होते हैं तो इंसान नॉर्मली जो इजी या सिंपल दिखने वाला ऑप्शन होता है वो चूज करता है, और यहीं पर इंसान मार खाता है। हमेशा याद रखें, रॉबर्ट कियोसाकी का एक बड़ा पावरफुल सेंटेंस है, अगर आप जीवन में सिंपल चीजें चूज करते हो तो आपका जीवन मुश्किल होगा, अगर आप जीवन में मुश्किल चीजें चूज करते हो तो आपका जीवन सरल होगा। तो मुश्किल का मतलब ये नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल का मतलब ये होता है इसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करना पड़ेगा, इसे मुश्किल कहा जाता है। So always choose difficult things in life so that your life becomes simple, instead of choosing simple things in life to make your life difficult. So that mistake Duryodhan makes in Mahabharata, and we know the rest is history. Okay, so remember this forever. Next is Dhritarashtra, Draupadi, Eklavya, Shakuni, Karna, gambling, Abhimanyu, Duryodhan. Okay, the ninth thing, the character is Arjuna. Okay, here Dr. Shivdas Chauhan says, I have donated life for Corona as a doctor in isolation ward. Wonderful, doctor. We salute your duty and sincerity towards it, and more power to you from all of us here. Okay.
Yes, as Dr. Karuna says, a good and satisfied patient will always refer 1,000 patients to you. Yes, very true. Okay, so whenever as a doctor you give quality, and when you give quality, as I always say in my courses, give massive value. Okay, massive value, इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन हो कि सामने वाले को लगे कि आपने सचमुच उसके लिए कुछ किया. ओके, आप भी ये चीज समझ सकते हो कि कोई विशेष आवश्यकता नहीं है कि मैं महाभारत और रामायण के 10 लेसन के बारे में बोलूं, पर आप सब लोग जिन्होंने अपने अपने समय निकालकर यहां पर समय दिया है, आपको अगर वैल्यू एडिशन हो तो वो मैसिव होना चाहिए. लोगों का टाइम पास करने का हमें कोई हक नहीं है. ओके, सो अर्जुना के बारे में मैं आपसे 2 चीजें सीखनी चाहिए ऐसे बताऊंगा. पहली चीज, फोकस फोकस एंड फोकस. जो भी आपका ध्येय है, जो भी आपका उद्देश्य है, आप इतने ज्यादा फोकस्ड हो कि आपको कोई भी जरा भी विचलित नहीं कर पाए. जब अर्जुन को पूछा जाता है कि आपका ध्यान कहां है, आई एम श्योर आपको यह स्टोरी पता है. अर्जुन का एक ही जवाब होता है, मुझे केवल वो आंख दिखाई दे रही है जहां पर मुझे निशाना लगाना है. बाकी सब लोगों को आसपास पेड़ दिख रहा है, मछली दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है. अर्जुन का ध्यान केवल उस आंख पर होता है जहां पर निशाना लगाना है. तो अगर पहली चीज अर्जुन से सीखनी है तो वो ये है कि फोकस एंड फोकस. ओके, फोकस का अगर आप एक्रोनिम निकालते हो तो बड़ा खूबसूरत है. फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल. अपने जीवन में भी कोई एक चीज ले, कोई एक स्किल चुने, उसे पूरी तरह से सीखे जब तक कि आप उसमें 100% सफल नहीं हो जाते. एक बार उस चीज में आप सफल हो गए, उस चीज की आपको मास्टरी आ गई, वो चीज आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली, उसके बाद दूसरे चीज पे जाए. फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल, एंड देन व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, टेक द नेक्स्ट कोर्स और हैव द सेकंड टारगेट. Then when you become successful in the second, take the third one. So this is the only way to grow exponentially in your life. अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करने का यह सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल तरीका है. Follow one course until successful. Follow one course until successful. Remember this forever. हमेशा याद रखें इसको. Right? So Dr. Nikita says, okay, wonderful. So Dr. as I said, there are lots of lessons which you can talk, lots of incidences, lots of characters and different roles at different times we can talk about. It's already almost an hour we are talking about. So I would actually like skip particular thing, बिकॉज एज आई सेड बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. सो और जो आपने लिखा है वो भी सही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऐसी चीज बात करें जिसके बारे में हमें अपने बिजनेस या प्रोफेशन में हेल्प हो. ओके, जब लॉकडाउन शुरू है तब भी आपका फोकस सही जगह, जब लॉकडाउन खत्म हो जाए आप आपके बिजनेस प्रोफेशन में वापस जाओ तब भी आपका फोकस सही जगह पे होना चाहिए. सो I'm not covering the conceptual stuff from Ramayana or Mahabharata. I'm giving you those points which you can implement in your day-to-day life during this lockdown and even after this lockdown. I hope you will appreciate my thought process. So पहली चीज focus. दूसरी चीज जो अर्जुन से हमें सीखनी चाहिए, constant learning. Continuous सीखते रहे, upgrade and upgrade yourself all the time. गुरु द्रोण के गुरु आने के बाद अर्जुन बहुत ही पावरफुल धनुर्विद्या सीखते हैं और सारे पांडव उसके बाद जो भी शिक्षा गुरुकुल में उनको मिलती है, कौरव भी वहां पर होते हैं. लेकिन महाभारत में अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसके बाद कौरवों ने और कोई एक्स्ट्रा शिक्षा ली. इट्स लाइक एक बार आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए और उसके बाद कुछ भी नया नहीं सीखे. लेकिन अर्जुन उसके बाद भी निरंतर लगातार सीखते रहते हैं. उसके बाद वो
शंकर भगवान की आराधना करते हैं और शिव की आराधना करने के बाद पशुपतास्त्र, जो कि एक बहुत वेपन है, पशुपति अस्त्र को वो पाते हैं। उसके बाद वो इंद्र की आराधना करते हैं और इंद्र से वो सारे दिव्य अस्त्र पाते हैं जो कि उनको महाभारत में बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो आप कितने भी बड़े हो जाए, आप अर्जुन के भी इतने पावरफुल बन जाए जीवन में, तो भी कंटिन्यूस सीखते ही रहना चाहिए। मेरे जितने सारे लाइफ एक्सेल के साथी यहां पर बैठे हैं वो अच्छी तरह ये चीज जानते हैं कि पिछले 15-16 महीनों में दोस्तों मैंने अलग अलग कोर्सेस में सीखने के लिए 48 दिन दिए। कोर्सेस मैंने कोई 2 दिन, कोई 3 दिन, कोई 4 दिन का कोर्स, ऐसे 48 दिन एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की भांति शिक्षा लिए। आप कहीं भी हो, आप कितने भी बड़े हो, आप आपके फील्ड में कितने भी एक्सपर्ट हो, हमेशा याद रखें केवल वो ही व्यक्ति तरक्की करता है जो कांस्टेंट कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कीप ऑन अपग्रेडिंग, कुछ ना कुछ सीखते रहे, ये चीज हमेशा याद रखिए। ओके, so Dr. Rahul Baldawa says your session on Ramayana and Mahabharata actually making us think a lot. Mental exercise, yes, it's very important. इसलिए मैंने बोला कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल बात नहीं करें। कॉन्सेप्चुअल बात करना बड़ा आसान होता है, जेनरिक बात करना बड़ा आसान होता है। Let's very specific lessons from Ramayana and Mahabharata which can be applicable in our life, in our career, for our growth, to do all the good things, the right things in our life. Okay, right. So upgrade, upgrade, and upgrade. Yes, and as Dr. Vikas also says, Arjuna got good mentors as well. Yes, very nice. He made his elder brother, अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को उन्होंने मेंटर बनाया, कृष्ण के उन्होंने अपना मेंटर बनाया। Yes, there is a lot or a big power of mentors. Okay, so वो बोलते हैं कि अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको दिशा दिखाने वाला कोई नहीं। हर व्यक्ति के पास मार्गदर्शक होना चाहिए। दोस्तों मेरे भी अपने मेंटर्स हैं जिनसे मैं हमेशा सलाह लेते रहता हूँ और एक अगली अब सफलता की अपनी एक अगली सीढ़ी पर पहुंचने की कोशिश। ओके, और जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण महाभारत में कैरेक्टर वो है कृष्ण का। सो कृष्ण से हमने क्या सीखना चाहिए? तो बहुत सारी बात है, पूरी भगवत गीता भरी पड़ी है कृष्ण से सीखने के लिए। लेकिन 2 चीजें जहां पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृष्ण से सबसे पहली बात, आपका अपना कर्म या आपका जो भी काम है वो आपने करते रहना चाहिए। ओके, एज दे से इन महाभारता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप अपना काम करते रहो, फल की अपेक्षा या फल कब मिलेगा, डोंट वेट फॉर दैट। रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली कम, फल जरूर मिलेगा। आपका काम है कि आपका काम करते रहो। Keep doing, keep moving in the right direction, and that is very, very important. Very, very important. As Martin Luther King had very nicely said, if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But make sure that you always keep moving in life. So whatever you're supposed to do, keep on doing it all the time. आप आपका काम करते रहो। अरे यार ये मिलेगा तो ही मैं ये करूंगा, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच, दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच इन लाइफ। यू कीप ऑन डूइंग इन द राइट direction, the right focus. Trust me, you will get what you want. Okay, it is very, very important, right? And second lesson which I want you people to learn from Krishna is strategic planning. Yes, आप सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध और युद्ध से पहले की सारी रणनीति कृष्ण ने कितने अच्छे ढंग से प्लान की थी। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पावरफुल लेसन टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस फ्रॉम महाभारत। वो बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। 5 P's, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां से जाने के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद, आपके बिजनेस प्रोफेशन में जाने के बाद
किस ढंग से आप आगे बढ़ोगे, किस ढंग से आप आपका बिजनेस प्रोफेशन को वापस उस लेवल पर लेकर आओगे जहां पर वो कोरोना से पहले था, इसका प्लानिंग आपने आज से अभी से शुरू करना चाहिए। वरना ये चिल्लाते बैठना कि दुनिया में सब कुछ प्रॉब्लम है, जीडीपी जीरो हो रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रहे हैं, इकोनॉमी तो नीचे जाएगी, तो इकोनॉमी नीचे जाएगी तो मेरा प्रैक्टिस भी नीचे जाएगा, ये तो हम सब लोग रो सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा कुछ प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि लॉकडाउन के बाद आपका और मेरा बिजनेस प्रोफेशन अपने जगह पर वापस आ जाए? एंड ट्रस्ट मी, यस वी कैन डू दैट एंड इट इज पॉसिबल। अगले संडे को अपने फेसबुक लाइव में यही अपना टॉपिक रहेगा, क्योंकि 26 अप्रैल के बाद उसके अगले संडे को 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा और लगभग आई थिंक 80 से 90% देश अपने काम पे वापस जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही माइंडसेट से, सही प्लानिंग से आपके काम के पास वापस जाए। दोस्तों, इस लॉकडाउन को मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूं। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों के साथ मेरी बात होती रहती है, फोन कॉल्स होते रहते हैं, इतना खूबसूरत तरीके से केवल प्लानिंग एंड प्लानिंग के लिए यूज किया इस समय को मैंने, कि जैसे ही काम शुरू होगा, यू शुड बी गेट सेट गो एंड दैट्स इट। इंस्टेड ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, अरे यार अब कैसे होगा, फिर ये होगा, फिर 6 महीने तो प्रैक्टिस रेस्टोर होने ही नहीं वाला है, 1 साल तो लग ही जाएगा, कुछ लोग तो 2 साल लग जाएंगे सब कुछ वापस जगह पे आने में। नो, रिमेंबर देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल: those who let things happen, those who do not even know what is happening, and those who make things happen. Friends, I want you people to make things happen. Learn it from Krishna. Plan things so well that when it starts again, you should only be in action mode and not in planning mode. Only action, action, and action once thing starts. Okay? As Dr. Ninad sir rightly said, sharpen your axe. This is the time when you should sharpen your saw. Okay? Whatever you want to learn, the 5 P's, Dr. Dipali, are proper planning, prevent poor performance. Proper planning, prevent poor performance. Plan things so well that when you go back to your workplace after this crisis, you should not be in planning or thinking phase. All the time, you should only be in action phase. I hope you got the message. Friends, I'm so happy and so delighted to share my insights, my views about महाभारत। एक बार फिर आप सबके लिए सम अप करना चाहूंगा कि द्रौपदी से हम लोग सीखते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक। बात करने से पहले इंसान ने सोचना चाहिए। धृतराष्ट्र से हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई गलती करता है, आपके बच्चे गलती करते हैं, उनको तुरंत उसी समय पर रोककर उस गलती को सही कर देना चाहिए। एकलव्य से हम सीखते हैं कि यू शुड बी सो पैशनेट and so focused about what you want to achieve. You should have that burning desire, that fire, and that hunger for that success and for that growth. शकुनी से हम लोग सीखते हैं what is the importance of good advice. You should have good advice. कर्ण से हम लोग सीखते हैं the more you give, the more you receive. Right? Gambling से हम लोग सीखते हैं try gambling once with limited money, which you can afford to lose, and stop it forever. दुर्योधन से हम लोग सीखते हैं always choose the right thing. You should have the wisdom to choose between what is right and what is not. Quality above quantity. अभिमन्यु से हम लोग सीखते हैं half knowledge is always very dangerous. अर्जुन से हम लोग सीखते हैं follow one course until successful, and keep on learning, keep on upgrading yourself all the time, and understand the power of mentors. Okay? और कृष्ण से हम लोग सीखते हैं keep moving, no matter how small, take the step in the right direction. As I always say, progress has nothing to do with speed but direction. Make sure that your direction is right. Okay? Keep going in the right direction. Plan things so well. Proper planning prevents poor performance. Plan things so well that when it comes to implementation,
There should be no surprises you should have, not even the positive surprises. So friends, I hope you like today's Facebook Live. Few very powerful insights and lessons from Mahabharata. Please share your takeaways, your views, or whatever you right now in the chat box, and I would really happy to know what you understood out of this almost 70-minute talk. Okay, I really took a lot of time of yours, and at the same time, please share this Facebook Live with whatever number of friends you want. आपको लगता है कि जिसके लिए ये यूजफुल लेसन साबित हो सकते हैं उन सभी के साथ ये शेयर करें. ओके, आपके व्यूज शेयर करें कि आपको ये सेशन कैसे लगा. Dr. Vikas Sonone says, what is the next topic? So next topic we will specifically talk about, because I am a dentist and I work on dental practice management or practice management for doctors. So topic I'm going to talk next Sunday, I'm going to talk on how to restart or reboost your practice when you start practicing after this corona. This profession. However, being a doctor and being a mentor on practice management, I'll just take the context of practice or medical or dental practice, okay, when I talk about this next time. And next time, I'm going to give you a powerful option to learn something more and very. Please share your views and add value. Said Ati Sundar Pravachan. So if you think this is Pravachan, if that is how we use Dr. Ultimate learning and closing your duty, you don't have to write on its reward. It's not about a rush, okay? What you are supposed to do, results which are beyond your imagination. Okay? So thank you everyone for all appreciations for this session. Dr. Tushar says glide paths. Definitely we are going to talk about that. Okay. And I want you people, okay, to wear something like this so that, okay, you also go in the vacation mode, and that's important, right? Dr. Jayeshi, next topic will be on how to reboot your practice. We're going to talk on next Sunday in another Facebook Live. So thank you much for share this with as many people as possible. Tag people or share this Facebook Live with everyone. So as of now, this is Dr. Sujit Pardeshi signing. I'll see you in my next Facebook Live next Sunday.